So we are dealing with the vectors. I'm so sorry. Okay. सेम इंट्रोडक्शन, सेम थिंग, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल रहेंगे. मैं उसी को रिपीट करता हूँ कि दैट इज vectors are physical quantities. There are two different kinds of physical quantities. Physical quantities are those whose value can be measured and can be communicated to somebody else, you know. So there are two different kinds of physical quantities. One are called scalars, which you have been dealing with since your childhood, right? So many things around you, right? And the other quantities which are called vectors. You may be knowing about them as well. As I gave you the examples of scalars, I gave you, that is, if somebody asks you what is the temperature of the room that you are sitting in, if the AC is on, maybe it is very comfortable, and so you'll say that the temperature of the, my God, okay. You say that temperature of the room is 26 degrees centigrade, right? Same example I am taking. Suppose somebody asks you what is the length of the pen that you are writing with, you will measure with the scale and say that it is 15 centimeter long, right? I'm asking these information for my curiosity. Temperature मैं इसलिए पूछूंगा कि comfortable है कि नहीं है. लेंथ में इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपनी पॉकेट में पेन को रख सकते हैं, बहुत लंबा तो नहीं है. You'll find it difficult to keep in the pocket. You have to carry it on your hand only. Maybe I ask you what is the mass of the cell phone that you are using, and you weigh it in a physical balance and you say that, sir, it is 170 grams or something like that. Anything. I don't recall what I said. Right. So these are the informations. These are all physical quantities, you know. Why are they called scalars? Because merely only telling the value of these quantities, temperature is 26, length of the pen is 15, mass of the cell phone is 170 gram, you give the complete information. You give the complete information to the person who is asking the question. इससे अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे भाई, टेम्परेचर 26 है, इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे उसको. पर मैंने आपको एक सिचुएशन बताई लास्ट टाइम पे, बिल्कुल वही सिचुएशन लेते हैं. लेट्स से ये क्रिकेट फील्ड है और इसमें ये पिच है, यू नो, ये पिच है. यहाँ पे यहाँ बैट्समैन है, यहाँ नॉन स्ट्राइकिंग एंड है, and there are lots of fielders. I told you few fielders in the covers, in the mid off, mid on, and mid wicket, something like that. कई जगह कई fielders हैं, and it so happens that कि ये बहुत ज़्यादा बैट्समैन बाउंड्री मार रहा है और कुछ स्क्वायरिश बाउंड्री मार रहा है, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी बाउंड्रीज आ रही हैं. ये फील्डर चाहता है इसको रोकना, पर रन करके रोक नहीं पाता. तो कोई इसको सजेस्ट करेगा, भाई तुम 15 मीटर शिफ्ट कर जाओ, तुम 15 मीटर डिस्प्लेस कर जाओ. अगर केवल इसको ये बताए, इस फील्डर को कोई ये बताए कि तुम 15 मीटर डिस्प्लेस कर जाओ, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. वो कहेगा मैं 15 सेंटीमीटर इधर, 15 मीटर इधर जाऊं, 15 मीटर इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं. श्योर और नॉट. तो इसीलिए केवल 15 मीटर बताना कि 15 मीटर शिफ्ट कर जाओ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसे कि यहाँ पे 26 डिग्री सेंटीग्रेड वह सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, 15 सेंटीमीटर वह सफिशिएंट, इसके अलावा कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. बट यहाँ पे ये कहना कि 15 मीटर शिफ्ट कर जाओ is not complete information, because together with 15 meter magnitude you require direction as well. किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाओ. तो मे बी एज आई टोल्ड यू कि देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन दैट ऑलवेज देयर. जब पवेलियन होता है, कमेंट्री सुनिए तो कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ एंड. लेट्स से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो किसी ने कहा भाई कि तुम 15 मीटर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करोगे तब बाउंड्रीज रोक पाओगे. श्योर और नॉट. तो उसने क्या कहा, उसने 15 मीटर बताया और डायरेक्शन नॉर्थ बताई. तो दो इन्फॉर्मेशन दी, तब हो पाया डिस्प्लेस कि नहीं हो पाया ये.
तो दैट मीन्स देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज अनलाइक दिस क्वांटिटीज, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलता, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, एंड दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. So as I wrote, I'll write again. So vectors are those quantities which require, they require. Vectors are those quantities or physical quantities? Oh, physical, of course. Those physical quantities. I didn't speak that a silent word. So require, I'm writing in short, they require both magnitude as scalars do, but together with that, and direction. So this is the difference between a scalar and vector, and there are several examples of vectors also. Scalar की भी बहुत, ये लिस्ट अनएंडिंग है, आप लिखते चले जाइए, इसकी भी लिस्ट अनएंडिंग है, ये भी बहुत लंबी लिस्ट है. पर फ्यू एग्जांपल्स आई गिव यू, लाइक आई टोल्ड यू डिस्प्लेसमेंट, यू नो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फील्ड 15 मीटर डिस्प्लेस हुआ था, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड थी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. एक्सीलरेशन इज अ vector quantity, and there are so many. Force is a vector quantity, very common example. So जैसे इनमें सिंबल्स है, टेम्परेचर को T से, लेंथ को L से, मास को M से शो करते हैं, वैसे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम लोग R से शो करते हैं, वेलोसिटी को V से, एक्सेलरेशन को A से, हर के लिए सिंबल है. फोर्स को बाय एंड लार्ज कैपिटल F से. बट माइंड इट, दिस इज नॉट द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन टू सिग्निफाई दैट दे आर वेक्टर क्वांटिटी अनलाइक स्केलर क्वांटिटीज. एक डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं, एंड दैट डिफरेंस इज वी पुट एन एरो अबव देम, वी पुट एन एरो अबव देम. इनके ऊपर एरो लगा देते हैं, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि हाँ भाई, इनमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट इट इज. सो आई मीन, लेट मी प्रोसीड. तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को वेक्टर्स की अलजेब्रा सीखनी है. अलजेब्रा ऑफ वेक्टर. व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ एनीथिंग? अलजेब्रा ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ दैट क्वांटिटी. जैसे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में आएगा आपके, तो उसमें कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड, हाउ सब्ट्रैक्टेड, हाउ मल्टीप्लाइड एंड हाउ दे आर डिवाइडेड. सो अलजेब्रा ऑफ एनीथिंग मीन्स कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ना. स्केलर्स का अलजेब्रा आपने बचपन से सीखते चले आए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्लास सेकंड थर्ड से जब से इंट्रोड्यूस होता है. आई डोंट नो, आई डोंट रिकॉल, बट वेक्टर्स यू लर्न इट एट दिस स्टेज, यू नो. तो हाउ दे आर एडेड, हाउ दे आर सब्ट्रैक्टेड एंड हाउ दे आर मल्टीप्लाइड. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन इन द केस ऑफ वेक्टर. माइंड इट, वेक्टर में डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है. इट इज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, हैविंग सेड दैट, मैंने एक बात और बताई कि हाउ आर वेक्टर्स शोन. वेक्टर्स आर शोन बाय व्हाट इज नोन एज आई रोट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. Vectors are shown by directed line segment, you know, or you can write in bracket, you know, arrow. Arrow is a shorter word for that. So डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कर लीजिए, एरो कर लीजिए. सो एक किसी वेक्टर को शो करने के लिए, सपोज आप किसी टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं उसको शिफ्ट करने के लिए, तो आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप एरो ड्रॉ कर देंगे. आप अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर एरो का ओरिएंटेशन होगा, इधर लगा रहे हैं इधर 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 होगा. जो ओरिएंटेशन आप चूज करेंगे वही उससे डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी. पर क्योंकि वेक्टर की में दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कैसे एक्सप्रेस होगा? तो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस होता है उसकी लेंथ से, हाउ लॉन्ग इट इज, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज, यू नो, राइट. इनफैक्ट जैसा हमने आपको बताया कि आप एक स्केल अडॉप्ट कर लेते हैं. लेट्स से आपको 50 न्यूटन का फोर्स एक्सप्रेस करना था, तो जैसे मैप बनाने के लिए आप स्केल नहीं अडॉप्ट करते. इंडिया का मैप अगर आपको A4 साइज पेपर बनाना है तो आप कहते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट्स से 100 किलोमीटर और समथिंग लाइक दैट, यू से, यू नो.
ओ kg कह रहे हैं, 100 kilometer, you write like this, don't you? And then you draw the map of India on a piece of paper, right? Likewise manner यहाँ पे भी हम लोग एक स्केल अडॉप्ट कर लेंगे. लेट्स से 50 न्यूटन को फोर्स दिखाना है तो कोई भी स्केल, लेट्स से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 न्यूटन हमने किया. अब मैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो विल इट बी इक्विवेलेंट टू 50 न्यूटन और नॉट? विल इट बी इक्विवेलेंट टू 50 न्यूटन फोर्स और नॉट? बिकॉज ये स्केल हमारा ऑलरेडी है 1 सेंटीमीटर इज 5 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर लाइन का ड्रॉ करेंगे. तो ये इस तरह से किसी वेक्टर को हम लोग शो करते हैं. अग्री? तो दिस इज व्हाट इज फोर्स. अग्री? राइट. विच इज 50 मीटर. अब अगर इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या मैं लिखूं F इज इक्वल टू 50? नो, इट विल बी ए ब्लंटली रॉन्ग स्टेटमेंट. बिकॉज अगर एरो लगा हुआ है तो केवल इतना लिखने से काम नहीं बनेगा, तब आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. तो अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है तो आप ऊपर का एरो हटा देंगे. तो मतलब किसी वेक्टर में अगर ऊपर का एरो हटा दिया, लेट से यहाँ पे जैसे ये सारे थे, यहाँ पे एरो हटा दिया, या V में ऊपर एरो हटा दिया, A में ऊपर एरो हटा दिया, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड. दो एस्पेक्ट में से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से केवल एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. डायरेक्शन के बारे में आप अभी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. अग्री? दूसरा तरीका है मैग्नीट्यूड बताने का कि इसके ऊपर आप एरो लगा दीजिए पर उसके अक्रॉस मॉडुलस लगा दीजिए, तब तो ये शो करता है कि आप है तो वेक्टर क्वांटिटी, ये ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी, पर हम उसके केवल मॉडुलस, दैट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. अग्री? अब मैंने एक छोटी सी बात और बताई थी, वो भी बता दें, फिर फटाफट रिवीजन करते हैं. राइट. एक छोटी सी बात मैंने मुझे बताई थी कि भाई व्हाट आर अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इट इज, तो ये जानना जरूरी था इसलिए मैं बता रहा हूँ. unlocalized vectors. What are unlocalized vectors? Very simple meaning, which are not localized. जो localized ना हो वो unlocalized. What do you mean by localized? Truly speaking, किसी वेक्टर क्वांटिटी की तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं. दो बातें नहीं, तीन बातें हैं. एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन, और तीसरा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे लग रहा है. जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं फिर दे रहा हूँ कि अगर आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं अपने रूम में, किसी कोई दरवाजे को, और आप अगर कोई फोर्स हैंडल को पुल करते हैं, तो अगर हिंज के बहुत दूर है हैंडल तो बहुत ही कंफर्टेबली खोल लेंगे. आपने रियलाइज़ किया कभी? जहाँ पे हिंज लगी होती है दरवाजों में, कब्जे लगे होते हैं, उसके बहुत दूर आप अगर हैंडल लगी है तो आप उसको अगर पुल करेंगे बड़े आराम से खुल जाएगा. पर मान लीजिए आप बिल्कुल हिंज के पास किसी पॉइंट में, मान लीजिए कोई एक नेल लगी है, कुछ लगी, उसको पकड़ खींचते हैं तो नहीं खुलेगा ना, बहुत मुश्किल से खुलेगा. दैट मीन्स फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन लग रहा है ये इंपॉर्टेंट तो ही है, पर किस पॉइंट पे लग रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कभी कभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेयर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी shifted. Point of application can be which is not localized to a point of application. That means we can write that they can be, these are vectors which these are vectors whose point of application is not fixed. In other words, we can say that they have the freedom of parallel translation. Freedom of parallel, मैं शो कर रहा हूँ, don't bother about that. Parallel translation. फ्रीडम ऑफ पैरेलल ट्रांसलेशन दे एंजॉय, कैसे? अगर कोई एक वेक्टर है और ये इतना रिजिड है कि भाई मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मेरी टेल यहीं पे रहेगी, ये टेल है, ये हेड है, मेरी टेल यहीं पे रहेगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा. पर अगर मान लीजिए वेक्टर के साथ ये फ्रीडम हो कि उसको मैं लेके कहीं भी ट्रेवल कर पाऊँ, बस दो बातों को ध्यान रखें कि इसका ओरिएंटेशन ना चेंज करें, नहीं तो वेक्टर बदल जाएगा, नॉट अलाउड, और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज करें क्योंकि तब भी वेक्टर बदल जाएगा. विदाउट अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कैन यू सी दैट इट कंप्लीटली ओवरलैप्स.
if I have the freedom to let it place anywhere, अगर मैं इसको कहीं भी ट्रेवल कर पाऊँ लेके, anywhere I want I can travel, तो it is called unlocalized vector. तो अंडरस्टैंडेबल है कि मेरे को दूसरा बताने की जरूरत नहीं कि व्हाट लोकलाइज वेक्टर. लोकलाइज वेक्टर्स आर दो जिनको नहीं ले जा सकते, जिनको कहीं भी फ्रीडम ऑफ पैरेलल ट्रांसलेशन, इनको कहीं भी पैरेलल ले जा सकते हैं, उनको हम अनलोकलाइज वेक्टर कहते हैं. और आपको मैं बता दूं कि अधिकतर वेक्टर अनलोकलाइज्ड होते हैं अनलेस अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड. अगर अलग से स्पेसिफाइड नहीं है कि ये लोकलाइज वेक्टर है तो आप उनको अनलोकलाइज वेक्टर मानेंगे. ओके, what is the angle between two vectors? Angle between two vectors. What is the angle between two vectors? How do you measure the angle between two vectors? Granted two vectors, let's say these two vectors are granted to us. Call them A and B. There could be anything. Call them A and B, right? Granted two vector, how do I talk about the angle between them? Dear friends, there are four ways you can tell the angle between them. आप देखिए ध्यान से, आप इसको रीड्रॉ करिए फ्रीडम ऑफ पैरेलल ट्रांसलेशन यूज करके. देखिए बिल्कुल वही वेक्टर है कि नहीं, ए ही है कि नहीं, कहीं पे भी जहां मन करे आप इसको रीड्रॉ करिए. बिल्कुल उतना ही बड़ा होना चाहिए, उतना ही एंगल, और दोनों की टेल कॉमन कर दीजिए, दोनों की टेल कॉमन कर दीजिए. तो दिस इज द एंगल बिटवीन देम. ये करेक्ट है, थीटा. दूसरा तरीका होगा कि आप इनको ड्रॉ करिए और हेड कॉमन कर दीजिए. हेड कॉमन कर दीजिए. देखिए यहाँ पे टेल कॉमन है, दोनों की टेल जो है वो जुड़ी हुई है, यहाँ पे दोनों का हेड जुड़ा हुआ है. तब भी जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा. बिल्कुल सेम, नो इश्यूज एट ऑल. ये भी सही है. थर्ड तरीका आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम लोग एक काम करें कि ए को प्लेस करें और ए के सीक्वेंस में, कॉमन टेल कॉमन हेड नहीं, सीक्वेंस करने का मतलब एक के हेड से दूसरे की टेल लगाना. ए के हेड से बी की टेल लगा दें. ये ए है, ये बी है. देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की टेल कॉमन थी, यहाँ दोनों का हेड कॉमन था. ये क्या था? कॉमन टेल मोड इसे कहते हैं. कॉमन टेल कॉमन है भाई. ये है कॉमन हेड. यहां पे क्या है? सीक्वेंशियल है. यहां सीक्वेंशियली प्लेस किया हमने, क्या ये इनके बीच का एंगल होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. नहीं, गलत है ये. आप सोचेंगे बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं. अभी 3 years बैक आईटी के एडवांस में क्वेश्चन आया था. मैथ्स में भी तो वेक्टर है ना, मैथ्स में तो वेक्टर एज अ टॉपिक है ही 12th में. तो एक बच्चे ने इसी मिस्टेक का कारण ऐसा, उसने कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किया, कैलकुलेट किया और ऐसे एंगल को उसमें पूछना था. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये ऑप्शन भी इंक्लूडेड दे दिया, वो गलत हो गया उसका. ये एंगल नहीं होगा. जब भी आप सीक्वेंस में ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको किसी एक को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. या तो आप ए को प्रोड्यूस कर लीजिए, या तो आप बी को पीछे प्रोड्यूस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई एक काम कर, दोनों नहीं. तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा, आपको पता है ना ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हम लोग इसको कहते हैं. डोंट बी कॉल द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल. अगर एक ट्रायंगल है, रिकॉल दैट, एक ट्रायंगल है अगर ये, तो ये इंटरनल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ द इंटरनल टू. एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, कह रहे नहीं वे. तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है, दिस इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो अगर सीक्वेंस में ड्रॉ ऑन वेक्टर्स तो आपको इंटरनल एंगल नहीं देखना, आपको एक्सटर्नल एंगल देखना. रिमेंबर दैट. And there is one more way you can measure the angle. आप B को डुप्लीकेट करिए, A को भी रीड्रॉ करिए, आप B के सीक्वेंस में A को ड्रॉ कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता. ये B है, ये A है. अभी भी किसी एक को प्रोड्यूस कर लीजिए, चाहे A को बैक प्रोड्यूस कर लीजिए, चाहे B को आगे फ्रंट प्रोड्यूस कर लीजिए. ये
this is the correct angle between the vectors. Sure or not? So I told you that you have to remember this very clearly कि एंगल का मेजरमेंट सही तब होता है न कॉमन हेड या कॉमन टेल में, ये भी सीक्वेंशियल है, ये भी सीक्वेंशियल है, सीक्वेंशियल। एंगल का मेजरमेंट करेक्ट तब होता है जब या तो कॉमन हेड और कॉमन टेल में ड्रॉ करके इंटरनल देखें और या तो सीक्वेंशियल में ड्रॉ करके एक्सटर्नल देखें। हैव यू ऑल गॉट द पॉइंट वेरी क्लियरली विदाउट एनी डाउट? बोलिए। No, sir, no doubt. No doubt. Okay. Okay, that's great. That's great. So let me go to formal discussion now. Let me go over to formal discussion now. Now, formal discussion is now the vector algebra starts, you know. So, of course, you know that कि as I told you, algebra में addition है, subtraction है और multiplication है. The first component is gonna be addition of two vectors, as I told you. Addition of two vectors. Addition of two vectors. More than two, एक अलग आर्टिकल होगा, उसको इसके बाद पढ़ेंगे। I'm so sorry. Where is the tool? Okay, that's great. Addition of two vectors. Well, as I told you, the first method, there are three methods I'm going to talk about. The three methods. The first method is parallelogram law. Parallelogram law. How does it work? There are three methods which is suggested. Any one of them can be used. Any one of them can be used. That is, granted two vectors to me. Granted two vectors to me. Let's say these are the two vectors which are granted to me, you know. A and B. I want to add them. क्यों भाई, क्यों ऐड करना है मेरे को? वाई डू वी रिक्वायर इट एट ऑल? क्वेश्चन ये उठता है। भाई मैं स्लाइड करके आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था। ये एक टेबल है, टेबल का ये टॉप से देख रहे हैं, टेबल टॉप है। ये टेबल बहुत हैवी है, इसको खसकाना चाहते हैं, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक यहाँ पे हुक लगाया, उसमें दो रस्सियाँ, यहाँ एक हुक लगाया और उसमें दो रस्सियाँ बांधी, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, एक आदमी खींच रहा है, राइट। तो ये मे भी 40 न्यूटन से पुल कर रहा है, 40 न्यूटन से, ये मे भी 60 न्यूटन से पुल कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों मिलकर कंबाइंडली कितना फोर्स लगा रहा है। तो आंसर विल नॉट बी 100, नो, 100 न्यूटन विल नॉट बी द आंसर। स्केलर एडिशन थोड़ी ना होगा, नो, नॉट एट ऑल। इट विल कम आउट टू बी समथिंग लेस देन 100। इन दोनों का इफेक्टिव फोर्स एडिशन कुछ कम आएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों का कंबाइंड एफर्ट कितना है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए मेरे को वेक्टर को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता है, भैया इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स इट इज वेरी कन्वीनियंट, ड्रॉ देम ओके इन कॉमन टेल मोड। किसमें बेटा? इन कॉमन टेल मोड। इन कॉमन टेल मोड आप कॉमन टेल में ड्रॉ कर लीजिए। लेट मी शिफ्ट इट स्लाइटली। ओके, दैट्स ग्रेट। आई वांट टू क्रिएट सम स्पेस, यू नो, कैन बी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई हैव redrawn them. Can you see that they're absolutely A and B? ये A है तो है, बिल्कुल देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है, पक्का ये A है। ओके
ओके, ये देख लीजिए आप फिर एक बार, ये बी है कि नहीं है, बिल्कुल बी है, ये देख लीजिए, इट इज बी, यू नो। मैंने उनको कॉमन टेल में ड्रॉ कर लिया। कॉमन टेल में ड्रॉ करने के बाद दो एडिशनल लाइन ड्रॉ की, एक ए से जाती हुई, एक पैरेलल सॉरी बी से जाती हुई। श्योर, let me not make it so long, it will occupy a lot of space, you know, it's not good enough. Okay, ए के पैरेलल बी के हेड से जाती हुई लाइन, कैन यू सी दैट? और बी के पैरेलल ए के हेड से जाती हुई लाइन। Any Tom, Dick and Harry will say that now you have completed a parallelogram. That's why the parallelogram law. This was my A, this was my B, and of course, this is a parallelogram which you have constructed out of these two vectors. अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इन दोनों का एडिशन जो होगा वो कॉमन टेल से स्टार्ट होके सामने वाले वर्टेक्स तक जाने वाला एक वेक्टर होगा। ये इन दोनों का एडिशन होगा। ये मेरा a प्लस बी होगा। दिस विल बी माई a प्लस बी। अंडरस्टूड दैट? राइट राइट राइट। तो डिफिनीशन आई एम नॉट राइटिंग, यू कैन राइट योरसेल्फ इन योर लैंग्वेज, कोई डिफिनीशन की नहीं है, आप अपने आप लिख लीजिएगा। मैं जल्दी से बोल देता हूं बिकॉज आई वांट टू सेव टाइम, राइट? तो आप पैरेललोग्राम लॉ को अगर स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? इफ टू वेक्टर्स आर टू बी एडेड तो वी ड्रॉ देम इन द कॉमन टेल एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन टेल एंड गोज टू द फोर्थ वर्टेक्स इज द वेक्टर एडिशन ऑफ द टू। समझ में आ गया? तो आई एम नॉट राइटिंग, यू कैन राइट दिस। हाँ बोलिए, मैं रिपीट कर दूं? चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, आप लिखिए, पर जल्दी लिखिए। हाँ, to add to add two vectors to add two vectors to add two vectors we draw them in the common tail mode, common tail manner. We draw them in the common tail manner and complete the parallelogram and complete the parallelogram. Full stop. A vector starting from common tail, a vector starting from common tail and going up to the fourth vertex, going up to the fourth vertex is the vector addition of the two, is the vector addition of the two. This is what is parallelogram law. Can you understood that? Have you understood that? Koi doubt? No. Understood. I show it by letter R also. R means resultant. एडिशन को कभी कभी रिजल्टेंट भी कह देते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं आर, आर से शो कर देते हैं। सेकेंड मेथड मेरा क्या है? द सेकेंड मेथड इज ट्रायंगल लॉ। Triangle law. How does the triangle law work? It is even more convenient. In fact, it is one of the easiest way. What I do is, I wanted to add these two vectors A and B. I bring them down, you know. I bring them down to scroll the screen. This was my A. I'm so sorry. This is my B, you know. What I do now to add them, is I draw them in sequential mode. या तो आप A के बाद B रख लीजिए, both ways, या तो आप
बी के बाद ए रख लीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप, दोनों तरीके से। ये देखिए मैंने ए के बाद यहाँ पे बी रखा है, हैप्पी, सीक्वेंशियल है कि नहीं है, ए की हेड से बी की टेल है, और यहाँ पे बी के बाद मैंने ए रखा है। अब आप देख रहे हैं कि इसका हेड, इसका टेल जो है एंगेज है, आपस में फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है, पर ये अनएंगेज्ड है कि नहीं, ये फंसा नहीं हुआ है ना, ये फंसा नहीं हुआ है, तो भैया अनएंगेज टेल को अनएंगेज हेड से ज्वाइन कर दिया, अनएंगेज टेल को अनएंगेज हेड से ज्वाइन कर दिया। ओ डियर, आई गेट द सम ऑफ द टू, and it's so convenient. I don't have to draw two additional line as I had to in the parallelogram law. Parallelogram law में देखिए 2 additional line बनानी पड़ती थी, इसमें तो कुछ नहीं है, दोनों को सीक्वेंस रखिए, खाली हेड खाली टेल को ज्वाइन कर दीजिए। आप विश्वास नहीं मान रहे इनका एडिशन है, तो आइए आपको दिखाएं, देखिए। हाँ बताइए बेटा, कैन यू सी दैट इट इज द एडिशन ऑफ द टू? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सेम आंसर है कि नहीं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बगल में रख के मैं दिखा रहा हूँ। हाँ बताइए, क्वेश्चन पूछिए बेटा अपना। हाँ सर जो बी वाली वेक्टर है, हाँ हाँ अगर उसको ए की जगह रख दी हाँ, तो तब भी नहीं आएगा। ये रखा ना यहाँ पे, बी को पहले रखा भाई, उसको घुमा नहीं सकते किसी को। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बी के हेड से ए को जोड़े कि ए के हेड से बी को जोड़े। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को, किसके हेड से किसके टेल को जोड़े। यहां पे मैंने ए के हेड से बी की टेल को जोड़ दिया है, यहां बी के हेड से ए की टेल को जोड़ दिया है। दो ही ऑप्शन तो हो सकते हैं ना बेटा, कोई थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि नहीं। तो इसको भी ज्वाइन करें तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा, स्टिल यू विल गेट ए प्लस बी। यस इट इज। तो हाउ कन्वीनियंट ट्रायंगल लॉ इज, आई मीन इट इज वेरी कन्वीनियंट। अगर आप नहीं मान रहे कि एडिशन है तो आइए कंपेयर कर लें पैरेललोग्राम लॉ से, देखिए है कि नहीं है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल बगल में रखा है मैंने, राइट। तो दैट मीन्स यस, ट्रायंगल लॉ से भी मैं ऐड कर सकता हूं। देखिए बेटा, ये दोनों मेथड जो थे, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो, दोनों ही मेथड मेरे क्या थे, दोनों ही मेथड मेरे ग्राफिकल मेथड थे। लेट मी पुल इट डाउन so that you get to see the two on the same page. Let me pull it down so that you get to see both on the same page. Okay, that's great. That's great. Can you see that both on the same page now? You can. Right. This is what parallelogram law and triangle law. पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम बनाना है, ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनाना है, पर दोनों ही क्या हैं? अगर हम लोग बात करें दोनों ही क्या हैं, दोनों ही, आई एम सो सॉरी, आई मीन आई शुड हैव टेकन द नॉर्मल पेन, दोनों ही ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। क्योंकि जिसमें भी डायग्राम बनाना पड़े वो ग्राफिकल हो गया कि नहीं हो गया? ग्राफिकल मीन जिसमें हमको डायग्राम बनाना पड़े तो ग्राफिकल मेथड है। क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें हमको डायग्राम ना बनाना पड़े? हाँ, आई कॉल सच मेथड जिसमें डायग्राम ना बनाना पड़े एज एनालिटिकल मेथड, एंड दैट इज द थर्ड वे। तो एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड, इसमें मेरे को डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। क्या कोई दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है बिना डायग्राम बनाए, जो कि खुद एक ग्राफिकल क्वांटिटी है वेक्टर, उसमें डायरेक्शन होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट टर्न पे, मैं फिर आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो, राइट। तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा कि why do we require analytical method. Just give me a moment, just one moment, right, just one moment please.
Okay, back now. So, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay, okay, that's great. Screen is also visible? Yes, sir. Oh, that's great. Yes, sir. Let us say that the same example I take, that there is a tabletop, not tabletop, the whole table you are seeing from the top. आप ऊपर से देख रहे हैं तो टेबल कट ऊपर ऐसे दिख रहा है. इसको कोई शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एक हुक बांधा जैसा कि मैंने अभी बोला था, और उसमें एक इंसान के बस की बात ही नहीं थी यार, बहुत हैवी टेबल थी. तो एक ने कुछ फोर्स लगाया, दूसरा थोड़ा और स्ट्रांग था, भाई उसकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो इसने जो है 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, और तब भी टेबल नहीं खसकी, तब भी टेबल नहीं खसकी. अब इन लोग परेशान कि क्यों नहीं खसकी भाई, मैंने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी है. तो दे कॉल्ड मी अप, एंड आई वॉज ड्राइविंग माई कार. सिचुएशन समझिए, आई वॉज ड्राइविंग माई कार और दे कॉल्ड मी अप. आई पार्क द कार ऑन द साइड लेन्स, राइट. मैंने फोन उठाया, ना मेरे पास पेन ना मेरे पास पेपर. मैंने फोन उठाया, मैंने कहा भाई क्या बात है. उसने कहा कि 40 न्यूटन और 60 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, टेबल खसक नहीं रही है, कम से कम ये बता दीजिए कि हम लोग का इफेक्टिव फोर्स कितना है. हमने कहा भैया मेरे पास पेपर पेन तो है नहीं, मैं कैसे ऐड करूं, पैरेललोग्राम बना नहीं सकता, ट्रायंगल बना नहीं सकता, न पेन न पेपर. चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं. तो मैं उनसे कुछ बातें पूछूंगा. मैं इनपुट के तौर पे इनसे क्या पूछूंगा, इनपुट के तौर पे मैं इनसे पूछूंगा भाई तुम्हारा फोर्स जो ए तुम लगा रहे हो फोर्स, और तुम जो बी लगा रहे हो, तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है. तो ए ने कहा भाई मेरा मैग्नीट्यूड 40 है. देखो हम एरो यहां नहीं लगा रहे हैं, यहां पे वेक्टर दिखाने के लिए एरो लगाया था पर यहां नहीं लगा रहे हैं. ए ने अपना मैग्नीट्यूड बता दिया. 40 लिखने की जगह मैं जनरल वैल्यू ए लिख देता हूं क्योंकि ए इसका मैग्नीट्यूड होगा. बी ने अपना मैग्नीट्यूड बताया, भाई इन दोनों को बताना ही पड़ेगा मैं कितना कितना फोर्स लगा रहा हूं, तभी तो मैं बताऊंगा तुम दोनों कंबाइंड एफर्ट कितना है. पर इतना ही नहीं, आप देखें एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो फोर्सेस थे, ठीक, इनको मैंने ट्रायंगल लॉ से ऐड किया. आप देखिए मेरे सामने, इनको मैंने ट्रायंगल लॉ से ऐड किया. लेट मी स्लाइड इट स्लाइटली मोर सो दैट यू डोंट गेट मिक्स्ड अप. ये इनका सम आया. आप देखिएगा कैसे एंगल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये इनका रिजल्टेंट आया. अब मैंने क्या किया कि इसी के बराबर मैंने ये ड्रॉ कर दिया. देखिए तो अभी भी बी का अभी भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि नहीं. मान लीजिए इस फोर्स की जगह ये फोर्स होता, तब सम क्या होता, तब सम होता मेरा ये होता. क्या आप देख सकते हैं, अब थोड़ा बड़ा सम आया है. जबकि ये वेक्टर देखें आप और ये वेक्टर देखें, दोनों का लंबाई सेम लग रही है आपको कि नहीं लग रही, बोलिए अग्री और नॉट. और ए तो कॉमन ही है, और बी को मैंने बस थोड़ा एंगल चेंज कर दिया. तो आप देख सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदल गया कि नहीं बदल गया. मैग्नीट्यूड हमको बी तो लॉन्गर लग रहा है पिंक से, आपको लग रहा है कि नहीं बी लॉन्गर, ब्लू वाला लॉन्गर लग रहा है कि नहीं पिंक वाले से. यस और नो. Yes, sir. हाँ, दैट मीन्स क्या चीज बदला इन दोनों केस में. जो बदला वो क्या बदला, क्या देख सकते हैं आप कि पहली बार दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल था. पहली बार दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल था, एक्सटर्नल एंगल देखना होता है ना, आपको याद है ना. अभी पहली बार दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल था, पहली बार ये एंगल था, और अब की बार क्या एंगल है, अब की बार ये एंगल है. तो एंगल बदल जाने से भी मैग्नीट्यूड बदल जाता है. मीनिंग वेयर बाय आई लास्ट द थर्ड क्वेश्चन टू देम एज ए इनपुट कि भाई ठीक है आप 40 न्यूटन 60 न्यूटन लगा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आप लोग का भगवान भला करे, बहुत ताकत है आप लोग के. बट ये बताइए आप कि ये आपके बीच में एंगल कितना है, ये भी तो बता दीजिए मेरे को. तो उन्होंने थीटा भी बता दिया. अब वो मेरे से क्या आशा करेंगे कि मैं उनको क्या बताऊं. अब वो मेरे से आशा करेंगे आउटपुट, जिसको मैं बोल रहा हूं फोन पे, मैं फोन पे उनसे कनेक्टेड हूं, वीडियो कॉल नहीं है, ऑडियो कॉल है. फोन पे जो मैं उनको बताऊंगा वो दो बातों में इंटरेस्टेड होंगे. कौन दो बातों में, आइए आपको बताएं क्या दो बातों में. देखिए वो किस बातों में इंटरेस्टेड होंगे.
अगर उनको अकल होती और वो पैरेललोग्राम लॉस ऐड कर लेते तो मेरे को कॉल करने की ज़रूरत ना पड़ती उनको, दे वुडंट हैव कॉल्ड मी एट ऑल, बट दे डिडंट नो। अगर वो ऐड कर लेते तो ये खुद ही जान जाते कि ये उनका रिजल्टेंट है। बोली हाँ या ना? तो केवल वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरा रिजल्टेंट कितना है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, श्योर और नॉट, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि जानना चाहते हैं ना, बल्कि ये भी जानना चाहेंगे कि अगर टेबल शिफ्ट होगी तो किधर शिफ्ट होगी, तो इसका ओरिएंटेशन भी जानना। तो इस पिंक वाले का ओरिएंटेशन बताने के लिए मैं क्या करूं, या तो मैं उसका ए से एंगल बता दूं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा मेरी बात को, या तो मैं उसका ए के साथ एंगल बता दूं, या तो मैं बी के साथ एंगल बता दूं। अरे भाई इतनी तो अकल उन लोग कही है कि अगर थीटा उनको नोन है, मान ली थीटा उन्होंने 60 बताया है और एक साथ में एंगल 40 डिग्री बताऊं तो समझ जाएंगे कि नहीं ये 20 डिग्री होगा। बोली हाँ है ना, क्योंकि दोनों का सम तो थीटा ही होना चाहिए ना। तो किसी एक के साथ मैं एंगल बता दूं, तो चलिए मैं ए के साथ एंगल बता दूंगा, तो मैं आउटपुट के तौर पे आर की वैल्यू बताऊंगा और ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल बताऊंगा कि रिजल्टेंट जो है ए से कितना ओरिएंटेड है, अल्फा एंगल कह देते हैं इसे, श्योर और नॉट, आई कॉल इट अल्फा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि y3 इनपुट एंड y2 आउटपुट? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? No, sir. नो, ओके, देन आई प्रोसीड, तो दैट मीन्स इन 3 नंबर के बेसिस पे ये 2 नंबर मेरे को बिना पेन पेपर के कंप्यूट करके बताना है। तो उसके लिए मैं भैया एक डेरिवेशन करता हूं, जो मैं आज करता हूं। आई विल गिव यू फूड फॉर थॉट, इतना ही आगे बढ़ पाऊंगा आज बिकॉज ऑफ रिकलेक्शन, गॉड नोज टिल व्हाट टाइम आई हैव टू रिकलेक्ट। So let's see. Okay, so let me paste it here. Okay, this was what graphical wave was. ये ग्राफिकल तरीका था ए और बी का सम पाने का। आइए मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं। केवल डेरिवेशन करने के लिए मैंने ये डायग्राम बुलाया, आप ये ना सोचिए कि मैं क्यों डायग्राम ला रहा हूं, मैं केवल डेरिवेशन करने तक के लिए ला रहा हूं भाई, इतना समझ लीजिए। मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए, मैंने इसको प्रोड्यूस किया और मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये बताइए ये मेरा क्या है, बी वेक्टर, ये मेरा क्या है, ए वेक्टर, और पिंक वाला क्या है, आर। ये बताइए, आपको मैंने पिछले पेज पे बताया कि एंगल कैन बी सीन, अगर आप सीक्वेंस, अगर कॉमन हेड कॉमन टेल में ड्रॉ करते हैं तो इंटरनल देख लीजिए, अगर सीक्वेंस में ड्रॉ करते हैं तो एक्सटर्नल देख लीजिए। यहां पे सीक्वेंस में ड्रॉन है ए के बाद बी, तो ये इनके बीच का एंगल होगा कि नहीं, थीटा। जो उसने थीटा एंगल बताया था मेरे को, वो यहां शो करेंगे, यहां शो करेंगे, यहां शो करेंगे कि नहीं, ये थीटा होगा। चलिए समझ गया आप लोग। तो दिस वुड बी द एंगल थीटा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इनफैक्ट मेरे को 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिले हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आई हैव गॉट 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक ये इस बहुत बड़ा कर लिया डॉट, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैन यू सी दैट, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है कि नहीं है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ये है, ये। और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे को बहुत सी थ्योरम्स अवेलेबल हैं। पहली बात तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, और दूसरी बात पाइथागोरस थ्योरम, द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री आई गेस, इज बेस्ड अपॉन राइट on this, you know. So maybe I can just alter this. Okay, this is a right angle. Okay, ये बताइए बेटा मेरे को, how much is this? Oh, I'm so sorry. How much is this? इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन hypotenuse, implies that base is gonna be hypotenuse into cos theta. Sure or not? What is the hypotenuse? इस वाले
इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी है भाई, बताइए फटाफट बताइए, बी है कि नहीं है? इज इट बी और नॉट? इज इट बी? दैट्स व्हाई इट इज बी. That's why it will be nothing but base would be b cos theta. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, b cos theta हो जाएगा ना? ये बताइए यहां से यहां तक लेंथ क्या है भाई, यहां से यहां तक लेंथ क्या है, ये भी बता दीजिए. यहां से यहां तक लेंथ तो आपको पता ही है कितनी है. यहां से यहां तक लेंथ जो है वो a है. अरे भाई a का मैग्नीट्यूड, और क्या. आप साथ साथ हमको ये भी बता दीजिए ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है. What is this height? What is this height? ओके, तो एक फॉर्मूला और लिखा. क्या लिखा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So that's why perpendicular is gonna be hypotenuse into sin theta. Agree? What is the hypotenuse? Hypotenuse is b again. Is b again? Sure or not? Is b again. So that's why it is gonna be b sin theta. अब मेरे को r का मैग्नीट्यूड बताना है. r का मैग्नीट्यूड, मेरे ऑब्लिगेशन क्या है, r का मैग्नीट्यूड और अल्फा. अल्फा ये एंगल है बेटा, अल्फा देख लीजिए ये. क्यों हमने बोला था ना अल्फा a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है. देखिए ना a, ये a है और रिजल्टेंट है. यही एंगल अल्फा है कि नहीं है, बोलिए अग्री और नॉट. तो हमको आर के ये पिंक वाले की लंबाई और ये वाला एंगल बताना है. पिंक वाले की लंबाई बताने के लिए मेरे पास बहुत सरल चीज है. व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम. मैं तुरंत बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में गया. मैं तुरंत बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में गया. दिस कैन यू सी दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं. तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया तो क्या आएगा, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. बोलिए agree or not. What is the hypotenuse? Hypotenuse is r or not? R square is equal to what is the base? टोटल बेस की लंबाई कितनी आप देख सकते हैं. यहां से यहां तक कितना a और यहां से यहां तक कितना b cos थीटा. तो a प्लस b cos थीटा और नॉट a प्लस बी कॉस थीटा. और ये बताइए परपेंडिकुलर कितना, b साइन थीटा. ऑल ऑफ यू अग्री. यहां तक आपको सब क्लियर है, कोई डाउट किसी को? से यस. ओके, आई नो डाउट. आई एक्सपैंड दिस. आई गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर plus 2ab cos theta ना plus b square cos square theta. डोंट आई. और यहां पे क्या हो गया बेटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. एम आई करेक्ट? कोई डाउट? नॉट एट ऑल. देयर इज समथिंग वंडरफुल दैट इज गोइंग टू हैपन. व्हाट इज दैट वंडरफुल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन? इन दोनों में मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया. कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर एनी थीटा इज इक्वल टू 1. अग्री और नॉट? नो दैट आइडेंटिटी. तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद केवल बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. और प्लस ये क्रॉस टर्म 2ab cos थीटा. एंड दस आर क्या हो जाएगा, आर विल बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अब आप सारी बातें डेरिवेशन तो हमने आपको बता ही दिया है पूरा. अब आप ध्यान दीजिए, आप ओरिजिनल बात पे जाइए. उसने मेरे को सब कुछ, मैं कहता हूँ सब कुछ मिटा दीजिए. मैं कहता हूँ एवरीथिंग शुड बी रब्ड ऑफ. यू रब ऑफ एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. सब कुछ मिटा दिया आपने, डिलीट कर दिया, कुछ नहीं,
छोड़ा आपने। उसने कहा था भाई मैं आपको ए बी और थीटा दे रहा हूं, मेरे को आप आर बताइए। अब मेरे पास ये फॉर्मूला तो मेरे को याद है, मैं कार में बैठा हूं, मैंने कैलकुलेटर उठाया, डाला क्या 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 40 इंटू जो भी एंगल दिया उसने उसका कॉस, और स्क्वायर रूट बटन दबा दिया। क्या मैं फोन पे उसको आंसर दे दूंगा? नहीं, बिना डायग्राम बनाए। विल आई बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन विदाउट मेकिंग डायग्राम और नॉट थ्रू दिस फॉर्मूला? तो दिस इज व्हाट इज एनालिटिकल, दिस इज व्हाट इज एनालिटिकल मेथड। ये तो डेरिवेशन था, फाइनल रिजल्ट ये है। अब बताइए एंगल कैसे बताऊं भाई अल्फा? तो एंगल बहुत आसान है। एंगल व्हाट वुड बी tan अल्फा? What would be tan alpha? The tan alpha would be nothing but what is tan theta? Tan theta, tan is perpendicular upon base after all. Is it or not? So what is perpendicular of this big right angle? B sin theta or not? And what is the base? Base is from here to here. पूरा ये पूरा perpendicular है, ये पूरा base है कि नहीं है? बोलिए हाँ है ना? So what is the perpendicular? B sin theta, or base is A plus B cos theta. That's why tan alpha would be equal to B sin theta upon A plus B cos theta. Appreciate that. अब मेरे को क्या क्या इनपुट उसने दिए थे भाई? उसने मेरे को बताया था क्या क्या? मेरे को उसने बताया था ए बी एन थीटा, ए बी एन थीटा बताया था। ए बी और थीटा के नॉलेज से आर भी मैं बता लूंगा, और ए बी और थीटा के नॉलेज से मैं अल्फा भी उसको बता दूंगा, दोनों बातें बता दूंगा। तो इस तरह से मैं बिना डायग्राम बनाए उसको दोनों आंसर दे दूंगा। एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, बिकॉज एनालिटिकल मेथड इज दैट मेथड जिसमें ग्राफिकल काम को बिना ग्राफ बनाए किया जा सके, बिना डायग्राम बनाए किया जा सके। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो उसमें सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सबको मैं डायग्राम बना के नहीं बताता, सबको इक्वेशंस लिख के बताता हूँ बिना डायग्राम बनाए। Sure or not? So this is what it is. Okay, right? Right? Understood that very clearly? क्या मैं आपको नोट करना है, स्क्रॉल अप करूं कि आपने नोट कर लिया है? Noted, all of you? Anybody has missed out? So I can scroll up. Okay, since you all seems to have noted down the things, so let me take a very small question here. Okay, can we? Okay, work it out. Sum of two unit vectors is a unit vector. Find the angle between two vectors. Now I tell you what is a unit vector before you do this question. A unit vector is one whose magnitude is 1. Let's say अगर ये वेक्टर A है, अगर A is equal to 1 तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 होता, 3 होता तो उसको यूनिट ना कहते। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यूनिट वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरे वेक्टर अलजेब्रा में। तो दैट्स वाई यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग ऑल टुगेदर डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। आपको पता है क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? ए कैप, उसके ऊपर एरो नहीं लगाते, ध्यान दीजिएगा, मैं स्लाइड करके लिख रहा हूँ।
किसी नॉर्मल वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को तो उसके आगे एक कैप पहना देते हैं उसको, कैप या हेड जो भी बोलिए। तो नॉर्मली यूनिट वेक्टर आर शोन बाई कैप। तो ये ए कैप मतलब कि ए इज 1, तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो एक मेरा दो यूनिट वेक्टर का सम जो है वो यूनिट वेक्टर है। बताइए अजीब सी बात कि दो यूनिट वेक्टर है, दो लोगों ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, उनका रिजल्टेंट भी 1 न्यूटन आया। क्यों आया आप बताइए? तो कहना है बताइए उन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या एंगल था, बताइए। आई हैव रिटन इट डाउन, मैं वर्ड्स में फिर बोल देता हूं। दो बच्चों ने एक टेबल को खिसकाने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना, और उनका रिजल्टेंट जब मैंने देखा तो वो भी 1 न्यूटन था। तो दोनों बच्चों के फोर्स के बीच में कितना एंगल था? नहीं नहीं, रैंडम बेटा, थोड़ा काम करके बताइए, ऐसा नहीं है रैंडम आंसर है। नीड टू वर्क इट आउट लिटिल बिट, थोड़ा सा काम करिए फिर। यू कैन डू इट बाय 3 डिफरेंट मेथड, तीनों के तीनों मेथड, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, एनालिटिकल, किसी से करना चाहे किसी से भी कर सकते हैं। बताइए बेटा, Sir, is the angle 60 degree? हु इज आंसरिंग? Sir, Kartikeya. नो बेटा, इट इज नॉट करेक्ट। Sir, हाँ जी, 150 degree. हु इज आंसरिंग? Sir, Anshika. नो बेटा, इट इज नॉट करेक्ट। Sir, 120. हु इज आंसरिंग? Saksham. It's the correct answer, Saksham. I appreciate that you got the correct answer, but wonder why everybody is doing trial and error. 120 is the correct answer, Saksham. I appreciate. Let me work it out by 3 different methods. बेटा इतना बहुत छोटा क्वेश्चन है ये. It is very small question to begin with. I couldn't have taken a simpler question than that at all to apply the concept that we have just dealt with. चलिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, 3 मेथड से करते हैं। मेथड 1 ऑफ कोर्स इज पैरेललोग्राम लॉ, जो जैसा है उसी सीक्वेंस में हम लोग करते हैं। तो पहला था पैरेललोग्राम लॉ, तो चाहिए मेथड नंबर 1 से कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से कर लेते हैं। देखिए, ये दो यूनिट वेक्टर हैं, अभी मेरे को इनका एंगल नहीं पता, पर मैंने ऐसा क्यों बनाया आप उसका रैशनल समझेंगे, इसका रैशनल समझेंगे। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। इन्होंने क्लेम किया है भाई, इन्होंने क्लेम किया है कि इनका रिजल्टेंट भी यूनिट है। अगर इन्होंने क्लेम किया इनका रिजल्टेंट भी यूनिट है, तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर इन दोनों को ऐड करें, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं इसको ऐड करूं पैरेललोग्राम लॉ से, तो भाई ये जो आना चाहिए ये भी यूनिट आना चाहिए। श्योर और नॉट, अग्री और नॉट? अब आप सोच लीजिए कि मैंने एक्यूट एंगल पे दोनों को शुरुआत में क्यों नहीं रखा था। एक्यूट एंगल पे रखते तो कितना बड़ा आंसर आता, आप देख लीजिए खुद, इसीलिए हमने ऑब्ट्यूज एंगल पे रखा था। आप देखिए, अगर दोनों शुरुआत में एक्यूट एंगल पे होते तो माय गॉड द आंसर रिजल्टेंट तो 1 हो ही नहीं सकता था, यूनिट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि देखिए कितना एलोंगेटेड होता है कितना एलोंगेटेड होता। क्या इन दोनों से तुलना कर पाते क्या हम? तो गलत होता कि नहीं? इसीलिए हमने
दोनों एलो वेक्टर को शुरुआत में जो कि यूनिट वेक्टर थे, लेट से ये ए कैप था और ये क्या था, ये ए कैप था, ये क्या था ए कैप, और ये क्या था बी कैप, कैप लगाने का मतलब यूनिट। तो मैंने इसीलिए ऑप्टिक्स रखा कि ये भी लगभग इनसे मिलता जुलता है। अगर ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, अरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करिए, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आपने क्यों नहीं किया इसको। ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो ये बताइए पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं, होती है ना, होती हैं। तो ये वन है तो ये भी वन होगा, ये वन है, ये वन है तो ये भी वन होगा। अरे भाई सभी वन 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 वन, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए इक्विलेटरल हो गया, हो गया। तो ये कितना हो गया एंगल, बोलिए 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब आप ये बताइए मेरे को, ये बताइए ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 60 हो गया कि नहीं। तो टोटल एंगल ए और बी के बीच में कितना हो गया, 120 डिग्री और नॉट। कितने लोग समझ गए बताइए, सब समझ गए, Yes, sir. ऑल ऑफ यू। तो एंगल शुड हैव बीन, आंसर इज 120 डिग्री। अंडरस्टूड दैट वेरी क्लियरली। तो दिस इज व्हाट इट इज। So that's why I ruled out the obtuse angle option. Right. Okay. That's great. Method 2. आइए 3 मेथड से करें, सारे मेथड तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तीनों मेथड पढ़ लिए हैं। मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 मैं ट्रायंगल लॉ पे बेस करूंगा। ये बताइए, ये मेरा, अगर आप खुद ध्यान से सुनिए, ये तो बहुत ही आसान है। ये ए कैप है, अब मैं बी कैप लेकर घूम रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ रखूं कि जो इसका अनएंगेज टेल से अनएंगेज हेड आए वो भी वन यूनिट आए। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा पास पास। ये गैप देखते रहेंगे नजर से, नजर से गैप देखते रहेंगे, नजर से गैप देखते रहेंगे। कुछ ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, बोलिए हाँ है ना, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा तभी तो गैप उतना ही आएगा। सिक्वेंशियल रखना है कि नहीं। तो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा। तो ये मेरा था भाई ए कैप, ये था मेरा बी कैप, और ये मेरा क्या था आर कैप, क्योंकि रिजल्टेंट भी आ रहा था। आप खुद बताइए, क्योंकि ए और बी, अब ये वन है, ये वन है, ये भी वन है, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। पर आपको पता है कि जब सीक्वेंस में वेक्टर ड्रॉन होते हैं, मिस्टेक ना करिएगा, जब सीक्वेंस में ड्रॉन होते हैं तो एक्सटर्नल एंगल देखते हैं, और जब कॉमन टेल कॉमन हेड में ड्रॉन होते हैं तो इंटरनल एंगल देखते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे ये एंगल देखना चाहिए ना, आपको ये एंगल देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, बोलिए हाँ या ना। दिस शुड बी द एंगल बिटवीन देम और नॉट। अब आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, 60 है क्योंकि इक्विलेटरल एंगल, तो ये 120 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए टोटल 180 होता है कि नहीं। सबको समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ से भी। Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा भाई। थर्ड मेथड, मेथड 3, एनालिटिकल। ए भी मेरा यूनिट वेक्टर है, बी भी मेरा यूनिट वेक्टर है, और आर रिजल्टेंट भी मेरा यूनिट वेक्टर है। अब मेरे को पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलिए बोलिए बोलिए, 2ab कॉस थीटा। पक्का, बिल्कुल प्योर एनालिटिकल, नो डायग्राम रिक्वायर्ड। ये देखिए, ये स्टेज देखिए, ठीक, नो डायग्राम रिक्वायर्ड, बिल्कुल बिना डायग्राम बनाए, यही तो एनालिटिकल है। आर भी यूनिट है इसलिए 1 स्क्वायर, ए भी यूनिट है इसलिए 1 स्क्वायर, बी भी यूनिट है इसलिए 1 स्क्वायर, ए यूनिट है इसलिए 1, बी यूनिट है इसलिए 1, और कॉस थीटा। अब थीटा बताना है। यहां से आ गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1, एलएचएस को आरएचएस में लिख दिया मैंने, ये दोनों 1 को इधर ले आए, श्योर और नॉट। तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है ना। अब एक बात सुन लीजिए कि कोई एंगल, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए जो ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में सीखेंगे आप, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं और यू विल बी पार्ट ऑफ क्लास देन। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कॉस की कुछ वैल्यू है तो इसकी मिरर इमेज अगर आप ले लेंगे, मिरर, इसको मिरर मानते हुए इसकी मिरर इमेज लेंगे, श्योर और नॉट,
तो ये एंगल क्या होगा बेटा, बोलिए 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 बोलिए, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? आपको पता है ना 180 माइनस थीटा को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ ना, तो ये अगर थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 क्या है थीटा 1 का, बोलिए सप्लीमेंट्री है। तो एक बात को सुन लीजिए मेरी बात को, कि सप्लीमेंट्री एंगल का कॉस निगेटिव होता है। तो आप देखिए कॉस 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 1/2, तो -1/2 किस एंगल का कॉस होगा, 60 का सप्लीमेंट्री का होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना? तो 60 का सप्लीमेंट्री क्या होता है, बोलिए 120 और नॉट, तो 120 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको आपको? Yes, sir. So this is where we are, this is what we have done, right? So that is what I have done it by 3 different methods. I guess you have understood it very clearly. So let me stop sharing the screen and come live so that I can start the maths class in time at 4:30, maybe 4:35 I can start, right? 5 minute delayed because half an hour का gap आप लोग को चाहिए जो maths की class में आएंगे, right? So let me stop sharing the screen and then I directly stop presenting. Okay. Now, am I live now? Can you see the normal screen? Okay, that's great. Okay. So this is where we are. Day after tomorrow we'll have again the class, preferably at 2:30. Hopefully everything is okay and I can start the class sharp at 2:30, right? And please send me the email ID in the coachings app, not on the WhatsApp. In the coachings app, you send me the email ID so that I can add you as attendee by default, right? And आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे पब्लिश कर दूंगा रात तक, तो आप देख सकते हैं अगर फिर से उसको रिवाइज करना चाहें तो, ठीक है ना? So I'll meet you at 4:35 in the maths class. Okay, bye. Okay, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.